Hi, my name is Noreen Ahmed. I'm a NEET biology educator, and today I'll be explaining the topic menstrual cycle, which is a very important topic for both NEET and board examination. So, what is menstrual cycle? According to the NCERT, the reproductive cycle in a female primates like monkeys, apes, and human being is called menstrual cycle. तो बेसिकली एनसीईआरटी हमें ये बता रहा है कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल विच इज दैट इज द रीजन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द reproduction and the reproductory health of a female human being. So in primates like monkeys, apes and human beings, there is a cyclical change due to hormonal action in a female body. Like it is a cyclical change. अब हम इसे अब menstrual cycle को हम लोग cycle क्यों बोल रहे हैं? Why it is known as cycle? जैसे कि seasonal चेंज होता है एक साइकिल में. इफ यू टेक 1 year, the year is starting from January, it is going till December and again coming back to January, again starting from the January. So this is a cycle. ठीक वैसे ही एक 28 days का साइकिल होता है फीमेल बॉडी में, जो कि day 1 से स्टार्ट हो रहा है. कुछ इसका फेजेस हो रहा है. Some changes consisting few days, then again some changes, then again some changes and coming back to the first day 1 का action. So this is the reason we are calling it as a menstrual cycle, because it is a cyclical change due to hormonal action in the female body. So the cycle is consisting about 28 days. Now it can be like the standard time is 28 days. Now it can be plus minus few days. No, it is normal. Now there are two term that we need to know. One is menarche and one is menopause. Now what is menarche? When a female body starts to develop and the female body is entering the puberty phase of its life, of her life, then the hormonal the female sex hormone, which is estrogen and progesterone, starts to secrete from the body. Due to the action of those hormones, the first menstrual cycle which is appearing, the appearance of the first menstrual cycle in a female body is known as menarche. The appearance of the first menstrual cycle, which in general it starts between the age of 12 to 14. 12 से 14 साल की उम्र के बीच में when a female is entering the puberty phase of her life, then the appearance of the first menstrual cycle is known as the menarche. और ये menstrual cycle throughout the life span of a female नहीं होता है. ये एक certain period of time तक ही continue रहता है. क्यों कंटिन्यू रहता है? बिकॉज दैट वी कैन डिस्कस इन द oogenesis part of the chapter, the reproductory chapter. Now we'll stick to this part only. So ये जो हमारा हो रहा है एक सर्टेन एज तक ही हो रहा है. ठीक है, समझ लो इट कैन हैपन टिल द एज ऑफ 40 to 50. द स्टैंडर्ड एज इज 45 की उम्र में जो लास्ट menstrual periods, जो लास्ट menstrual cycle जो अपेयर हो रहा है, दैट इज नोन एज मेनोपॉज. तो हमने यहाँ पे दो टर्म सीखा, वन इज मेनार्की एंड द अदर वन इज मेनोपॉज. मेनार्की क्या हो रहा है? द अपेयरेंस ऑफ द फर्स्ट menstrual cycle एंड मेनोपॉज इज द लास्ट menstrual cycle. एक फीमेल का लाइफ स्पैन अगर हम लोग देखें, इफ वी सी अ लाइफ स्पैन ऑफ अ फीमेल, तो व्हेन शी इज एंटरिंग द प्यूबर्टी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? मेनार्की. ओके, एंड मेनार्की से द लास्ट टाइम व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अपेयरिंग इन द बॉडी, देन हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? मेनोपॉज एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ स्पैन. ओके, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो we can see the structure of uterus and the ovary. Now why these structures? Because in menstrual cycle there are two organs which actively participate and get affected by the hormonal changes in the body. ओके, सो ये दो पार्ट हमारा क्या हो रहा है? एक है हमारा यूटेरस, एक है हमारा ओवरीज. तो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए द स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड द एक्शन ऑफ यूटेरस एंड द एक्शन ऑफ ओवरी हम लोगों को समझना पड़ेगा. ओके, दिस इज आई विल जस्ट डिस्कस द स्ट्रक्चर रफली.
दिस इज द यूटेराइन स्ट्रक्चर, लाइक इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट. यहाँ पे हमारे पास ओवरी है, वी हैव अ पेयर ऑफ ओवरी, वी हैव अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड वी हैव वन यूटेरस. दिस इज द यूटेरस. अब यूटेरस में हमें दिख रहा है वी हैव मायोमेट्रियम लाइनिंग, वी हैव एंडोमेट्रियम लाइनिंग. नाउ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस. इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम. तो पूरे यूटेरस में एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग विच गेट्स प्राइमरीली अफेक्टेड एंड टेक प्राइमरी पार्टिसिपेशन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये वाला पार्ट, दिस एंडोमेट्रियम पार्ट. तो यहां से एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि विच पार्ट ऑफ द यूटेरस टेक्स डायरेक्टली पार्टिसिपेशन और इट गेट्स अफेक्टेड बाय द हार्मोनल एक्शन. देन द आंसर विल बी एंडोमेट्रियम. ओके. देन हमारे पास यहाँ पे आ गया है स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. अब ओवरी का स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो फॉलिकल्स है ये ग्रो कर रहा है, फॉलिकल्स ग्रो कर रहा है, साइज में बड़ा हो रहा है, स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आ रहा है. देन हम लोग देख रहे हैं फाइनली हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल जो है विच इज अ मैच्योर फॉलिकल हमारा यहाँ पे बन गया है. एंड सडनली हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट फेज में कि हमारे इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होकर बाहर निकल गया है. ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, विच इज आवर हार्मोनल एक्शन. ओके. और फिर हम लोग देख रहे हैं जब ये सेकेंडरी oocyte जब बाहर निकल गया है, देन हम लोग देख रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बन गया है, येलो स्ट्रक्चर बन गया है. ये येलो स्ट्रक्चर क्या है, ये येलो स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है. जो तुम्हारा रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल लेटर ऑन इट्स लाइफ गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है. तो ये जो इवेंट्स हो रहा है, द कंटिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स, ये हर एक का रीजन हो रहा है. व्हाई इट इज हैपनिंग, देयर इज अ रीजन एंड वी विल डिस्कस द रीजंस. ठीक है. सो द रफ स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे समझ में आया. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ द यूटेरस, द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड किस तरीके से चेंजेस हो रहा है पूरे 28 डेज का साइकिल में. देखो ये यहाँ से चेंज हो रहा है, इस तरीके से चेंज हो रहा है. देन ये ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया. देन ये जो तुम्हारा रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल था ये तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया. देन कॉर्पस ल्यूटियम देखो पूरा अपना पीक में है, and that is the reason it is secreting a very high amount of estrogen and progesterone. corpus luteum progesterone भी secrete करता है and estrogen भी secrete करता है. And then these are actually yellow body. It contains a lot of nutrients in it. ठीक है. It is basically yellow bodies. and जब corpus luteum धीरे धीरे degenerate होता है तो ये एक whitish body में convert हो जाता है, which is known as corpus albicans. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो ये स्ट्रक्चर आई होप हम लोगों को समझ में आ गया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. The hormone, the name of the hormone that I'm taking again and again, we have to understand the hormone also to understand the action of these hormones. ठीक है. तो दो glands जो है हमारा हार्मोन में हेल्प करता है. one is your pituitary gland and other organ is the ovary. ओके. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हम लोग का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है. एंड ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है. ओके. सो एक बार हम लोग पिट्यूटरी का भी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. व्हाट इज पिट्यूटरी, दैट कैन बी अ क्वेश्चन. पिट्यूटरी इज अ एंडोक्रीन ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द बोनी कैविटी विच इज नोन एज सेला टर्सिका. तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एक बोनी कैविटी प्रेजेंट है इन द बेस ऑफ द ब्रेन जिसका नाम होता है सेला टर्सिका. उसके अंदर में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ वेरी स्मॉल साइज्ड ग्लैंड. नाउ if we consider this as a pituitary gland, just consider this as a pituitary gland, then we can divide pituitary gland into two parts. One is our adenohypophysis and the other one is our neurohypophysis. अभी adenohypophysis को we can divide it into two parts, which is one is your pars distalis and the other one is your pars intermedia. अब हमें काम है इस pars distalis का. This pars distalis region of the pituitary gland is also known as anterior pituitary. Anterior pituitary. तो ये anterior pituitary से ही हमारा क्या रिलीज हो रहा है, FSH and
FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग को क्या समझ में आया? पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग को समझ में आया कि देयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द बेस पार्ट ऑफ द ब्रेन, देयर इज अ बोनी कैविटी विच इज नोन एज सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इनसाइड द बोनी कैविटी and the pituitary gland can be divided into two parts, which is your adenohypophysis and neurohypophysis. The adenohypophysis can further be divided into two parts, which is your pars distalis and pars intermedia, and the pars distalis region is known as the anterior pituitary, and the anterior pituitary secretes the hormone which is known as follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. Okay, अब ओवरी में हमारे पास क्या होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही रिलीज होता है। मैंने बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन दोनों ही सिक्रीट करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। यहाँ पे हमारा क्या है? हार्मोनल चेंजेस, ओवरियन चेंजेस एंड यूटेराइन चेंजेस, तीनों ही हमारे एक साथ दिया हुआ है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन अ क्लीन स्लाइड। ओके, सो पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। ओके, समझ लो, दिस इज अ 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल का लाइन। वन इज आवर डे 1, in between day 14 and we have day 28. Okay, we have day 28. तो ये जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट दोज। ओके, सो वी विल स्टडी द ओवरियन चेंज, देन विल स्टडी द यूटेराइन चेंज। ओके, दिस इज ओवरी एंड दिस इज यूटेरस। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है। हम लोग को पहले ये समझना है कि इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द साइकिल। ओके, जब हम लोग डे 1 से डे 28 तक जा रहे हैं, द साइकिल इज गेटिंग अ कंटिन्यूएशन। साइकिल कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा, वो कंटिन्यू हो रहा है। हम लोग को देखना है जब 28 डेज में हम लोग पहुंच गए हैं ना, तो हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन बहुत ही कम हो गया। प्रोजेस्टेरॉन एकदम निल हो गया हमारे बॉडी में। बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन निल हो गया है, जो यूटेराइन लाइनिंग जो था, दिस यूटेराइन लाइनिंग, जहां पे ये थिकनिंग होता है यूटेराइन लाइनिंग में ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द हार्मोन, ये यूटेराइन समझ लीजिए, ये हमारा यूटेराइन का लाइनिंग है। ओके, दिस इज बिकमिंग कुशनी ओवर टाइम। ठीक है, यहाँ पे कुशनी लेयर स्टार्ट हो रहा है बिकॉज द मेंस्ट्रुअल साइकिल में बॉडी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू फॉर प्रेगनेंसी। तो जो इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन तो एंडोमेट्रियम में ही होगा, तो एंडोमेट्रियम को सपोर्ट चाहिए टू होल्ड द प्रेगनेंसी। तो उस प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए क्या होता है, ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हमारा जो यूटेराइन लाइनिंग है विच इज एंडोमेट्रियम, इट स्टार्ट्स टू बिकम थिक इन नेचर सो दैट इट कैन होल्ड द एम्ब्रियो। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ प्रोजेस्टेरॉन घट जाएगा, और वो प्रोजेस्टेरॉन घट जाने की वजह से जो हमारा थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो जो है टूट के निकलने लगेगा। बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट्स। तो यहाँ पे ये बोलने का रीजन ये था कि जब यहाँ पे 28 डेज तक आके जब हमारा प्रोजेस्टेरॉन बहुत, इफ देयर इज नो इम्प्लांटेशन, तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा घट गया। घट जाने की वजह से क्या होगा, वो जो एंडोमेट्रियम थिकनिंग टूटा, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटा, वो टूटने की वजह से ब्लड लॉस होगा। सो दिस इज द ब्लड लॉस विच इज हैपनिंग हियर। ओके, so this blood loss and the actual जो blood loss होता है, this phase is known as menstrual phase. Okay, and this can be continue for 3 to 5 days. 3 से 5 दिन के बीच में ये हो सकता है। तो ये 3 to 5 days, समझ लो 5 days तक को हम लोग बोलते हैं menstrual phase. मेंस्ट्रुअल फेज। तो पहला, द साइकिल का फर्स्ट 1 to 5th डे वी विल कॉल इट एज मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज हमारा खत्म हुआ, अब हम लोग क्या देखेंगे, धीरे धीरे हमारा जो egg cells था, that will get the oocyte, the primary oocyte, secondary oocyte, this will get
डेवलप्ड विथ टाइम. ओके, सो हमारे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ओवरी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. द सेल्स आर गेटिंग डेवलप्ड और हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, मच्योर ग्राफियन फॉलिकल हमारा यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, बट अब हम लोग को देखना पड़ेगा 14th डे. तो ये जो 14th डे के जस्ट एक दिन पहले हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स ह्यूज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ FSH, follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. तो बिकॉज ऑफ द LH सर्ज, द हाई अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ LH, क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन की वजह से हमारा क्या हो रहा है, जस्ट इस दिन का एक दिन पहले ये जो LH सर्ज होता है ये 12 से 14 घंटा टिकता है. बिकॉज ऑफ दिस 12 से 14 घंटा persistent LH सर्ज क्या होता है, 14 डेज में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और हमारा जो सेकेंडरी oocyte था ये बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है, ये बॉडी से बाहर एज इन ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाता है. ओके, अभी इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन और ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन हम लोग किसको बोलेंगे, LH सर्ज की वजह से, बहुत ज्यादा LH सिक्रीशन होने की वजह से हमारा जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हुआ और हमारा जो सेकेंडरी oocyte था उसके अंदर वो क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल गया. उस बाहर निकल जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन. अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मैम ये कहाँ पे निकलता है, सो ये रहा हमारा ओवरी. ओके, यहां से हमारा हाँ दिस सेल इज आर रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, हमारा सेकेंडरी oocyte यहाँ पे निकला. अब सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज हो जाता है. अब ये तो मैम ओवरी से बाहर रिलीज हो गया, ये यूटेरस तक जाएगा कैसे, वी आर सीइंग दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द fallopian tube. The fallopian tube का जो last part है which is known as your fimbriae is having some finger like projection. तो because of the finger like projection का movement, for example if the ovary has released the secondary oocyte here and here is the fimbriae, so because of the structural like movement of the fimbriae, the secondary oocyte will go inside the fallopian tube और वहां से क्या होता है, ये ट्रैवल करके it can go here and then get implanted here after the fertilization. Okay, this was for the understanding. Now we'll go back to the menstrual cycle. So यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि 1 to 5th डे तक हमारा क्या हो रहा है, 1 to 5th डे तक हमारा मेंस्ट्रुअल फेज हो रहा है, जो कि हमारा साइकिल, पिछले साइकिल का लास्ट फ्यू डेज में, हमारा जो पिछला साइकिल था उसका जो लास्ट डेज में हमारा जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन खत्म हो गया था बॉडी में, उसकी वजह से हमारा जो एंडोमेट्रियल थिकनिंग था वो टूटने लगा और बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द एंडोमेट्रियल थिकनिंग हमारा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ. बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग दैट ब्लीडिंग फेज विल रिमेन फॉर 3 to 5 days and that phase is known as menstrual phase. Along with the menstrual phase हमारा न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया. इन दैट साइकिल द फॉलिकल विल स्टार्ट ग्रोइंग. तो यहां से फॉलिकल ग्रो कर रहा है, वी कैन सी, एंड द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड देन द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज गेटिंग रप्चर्ड ड्यू टू द LH सर्ज. LH इज द पिट्यूटरी हार्मोन. LH सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया एंड दिस इज नोन एज आवर ओव्यूलेशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के ओव्यूलेशन का फेज तक देखें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, ओवरीज में हम लोगों ने देखा है कि फॉलिकल डेवलप हो रहा है. तो दिस फेज इज नोन एज फॉलिक्यूलर फेज फॉर द ओवरी. क्या बोलेंगे हम लोग इसको, फॉलिक्यूलर फेज फॉर द ओवरी. ओके, बट वहीं पे हमारे पास देखना है ओवरी, हमारे यूटेरस में क्या चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जो हमारा हमारा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो डिजेनरेट हो गया था वो धीरे धीरे से क्या हो रहा है, फिर से प्रोलिफरेट कर रहा है, बढ़ रहा है साइज में, खुद को ये क्या कर रहा है, हील कर रहा है. तो यहां तक कि इसने खुद को हील किया तो प्रोलिफरेट हो रहा है. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज फॉर द यूटेरस. तो हमारा ओवरी के लिए फॉलिकुलर फेज रहा और हमारे यूटेरस के लिए रहा प्रोलिफरेटिव फेज. तो यहाँ पे हमारा आफ्टर ओव्यूलेशन हो गया, इसके बाद हमारा जो मैम ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है इसका क्या बनेगा, इसका हम लोगों ने जो लास्ट स्लाइड में देखा, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल का तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा.
तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे, कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम इज अगेन आई एम टेलिंग इट इज अ येलो बॉडी, इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम. अभी कॉर्पस ल्यूटियम जो है अपना पीक में रहेगा. ठीक है, जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम रहता रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे ये बढ़ता सिक्रीटरी लाइक स्टेजेस ऑफ द यूटेराइन लाइन विल गेट इंक्रीज. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है तो हमारा सिक्रीटरी स्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे अभी हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है और धीरे धीरे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट होने लगता है तो ये व्हाइटिश बॉडी बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स. कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं हम लोग इसे. ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि जब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, जब हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम बन गया आफ्टर ओव्यूलेशन, तो इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूटल फेज और सिक्रीटरी फेज. कॉर्पस ल्यूटियम से हम लोग बोलेंगे ल्यूटल फेज और सिक्रीटरी फेज. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा कॉर्पस ल्यूटियम से हमारा क्या रिलीज हो रहा है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही हमारा रिलीज हो रहा है. अब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है. सो ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, अब हमारा पिट्यूटरी को वो नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है. नेगेटिव फीडबैक भेजने की वजह से क्या हो रहा है, बोलने का मतलब बस यही है, कॉर्पस ल्यूटियम से जो हमारे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है वो ईस्ट्रोजन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है तो कि बस कर भाई, अब और एफएसएच एलएच की जरूरत नहीं है बॉडी में. तो एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन को घटा रहा है. तो ईस्ट्रोजन एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन को घटाने के लिए नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है. दैट इज द रीजन एफएसएच और एलएच का ड्यूरिंग द एंड ऑफ द साइकिल एफएसएच एंड एलएच जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, साथ में प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन भी डिक्रीज हो जाता है. दैट इज द रीजन अगेन ये डीजेनरेशन के लिए स्टार्ट हो जाओ. दिस डीजेनरेशन अगेन विच इज शोन हियर, विच इज दिस वन. विच इज दिस वन, दिस डीजेनरेशन. तो हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या समझ में आया कि हम लोगों के पास यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, देन फॉलिकुलर साइकिल हुआ, फॉलिकुलर फेज हुआ, देन हमारा ल्यूटल और सिक्रीटरी फेज हुआ. सिक्रीटरी फेज एंड ल्यूटल फेज इज द लास्ट पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, तो ईस्ट्रोजन जब नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है इन द लास्ट पार्ट ऑफ द साइकिल में टू द पिट्यूटरी ग्लैंड सो दैट एफएसएच एंड एलएच इज डिक्रीजिंग इन अमाउंट एंड देन estrogen and progesterone is also decreasing in amount. Because of that the body is again now prepared for the degeneration or the rupture of the endometrial thickening. और फिर वो endometrial thickening, प्रोजेस्टेरॉन घटा, endometrial thickening टूटना शुरू हुआ, वो टूटने की वजह से menstrual bleeding starts and the menstrual bleeding will again stay continue for 3 to 5 days which is again known as menstrual phase. So this is the menstrual cycle. I hope it is all clear. Okay, so now we can see here the हार्मोनल चेंज एज वेल. अब हम लोगों को यूटेरस का चेंजेस एंड ओवरी का चेंजेस समझ में आ गया, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल हो रहा है यूटेरस ओवरी में, और ये हमारा यूटेरस एंड ओवरी, और दीज आर द पिट्यूटरी हार्मोन. ये क्या है, हमारा पिट्यूटरी हार्मोन है, ये पिट्यूटरी हार्मोन है, और ये हमारा क्या है, ओवरियन हार्मोन. ये हमारा पिट्यूटरी हार्मोन है, ये हमारा ओवरी का चेंजेस है, ये हमारा ओवरियन हार्मोन है, और ये हमारे यूटेराइन चेंजेस है. ओके, तो एज वी कैन सी यहाँ पे हमारा फॉलिकल ग्रो हो रहा है. ओके, सो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है ना, ये हमारे पास ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है. ओके, तो ये जो सिक्रीटिंग ईस्ट्रोजन है ना, ये पॉजिटिव फीडबैक भेजता है. पॉजिटिव फीडबैक किसको भेजता है, ये एफएसएच एलएच को भेजता है. बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक एफएसएच और एलएच का क्या हो रहा है, जब भी एफएसएच और एलएच को पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा है, द इनिशियल पार्ट ऑफ द साइकिल का जो ईस्ट्रोजन फॉलिकल से रिलीज हो रहा है, वो ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा, किसको भेजेगा, एलएच को. और इसके वजह से क्या होगा, इसका जो एक सर्ज आएगा, इंक्रीजिंग इन द सिक्रीशन. बिकॉज ऑफ दिस सर्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है.
ओके और ये सर्ज के बाद हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा प्रोलिफरेशन ऑफ द एंड्रोमेट्रियल थिकनिंग हो रहा है। वहीं पे जब ओव्यूलेशन हो गया तो ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारा सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन नहीं, ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से जो ईस्ट्रोजन सिक्रेट हो रहा है ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द साइकिल, ये क्या हमारा सिक्रीट कर रहा है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ। तो ये ईस्ट्रोजन जो है हमारे यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक भेजता है टू द पिट्यूटरी विच विल डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच और एलएच। हम लोग यहाँ पे देख सक रहे हैं एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन घट गया है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एफएसएच एंड एलएच का सिक्रीशन। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हमारा जब कॉर्पस ल्यूटियम, जब कॉर्पस एल्बिकन्स बन रहा है तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रीशन घट गया बिकॉज ऑफ द very less amount of progesterone present in the body. Again menstrual bleeding start in the next cycle. तो this is the all over structure. यहाँ पे हम लोगों का कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन, विच इज LH सर्ज। LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन एंड आफ्टर ओव्यूलेशन व्हाट हैपेंस टू द mature graphene follicle, it's get converted into the corpus luteum. Which hormones are getting released from the corpus luteum? Progesterone, estrogen. और हम लोग क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक बार तो हमारा फॉलिकल की वजह से, फॉलिकुलर ग्रोथ की वजह से ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, एक हमारा कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से ईस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि 2 बार सर्ज दिखा रहा है, तो ये हार्मोन होगा ईस्ट्रोजन। दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन। So these are the questions which can be asked in the examination. So I hope these are clear. We have learnt about what is menstrual cycle according to the NCERT. We have also understood menarche and menopause. Now we have roughly understood the structure of ovary and uterus, and then we have studied the different kind of hormone which is responsible for the changes in the uterus and the ovary. And this is the NCERT ka diagram which we have tried to understand in this particular slide, the changes of ovary and uterus and different kind of hormonal actions, positive negative feedback. I hope this is clear. And we have discussed some important question of the topic as well, and this is the structure that I have tried to explain properly. Okay, now we will do some important question like previous year questions of NEET. First they have asked the first menstruation in female is called, the examples, the options are ovulation phase, ovulation, menopause, menarche and diapause. तो ये पूछ रहा है कि कौन जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन अ फीमेल को क्या बोलेंगे हम लोग। तो जो हम लोगों ने पढ़ा इन द फर्स्ट स्लाइड, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेनार्की। तो मेनार्की में हम लोग टिक करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओव्यूलेशन इज इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स ड्यू टू। तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन क्यों होता है? द ऑप्शंस आर सडन डिक्रीज इन LH, LH घट जाने की वजह से, LH सर्ज, LH बढ़ जाने की वजह से, डिक्रीज इन FSH, FSH घट जाने की वजह से, एंड इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन बढ़ जाने की वजह से। तो सही आंसर क्या होगा? LH सर्ज। जो हम लोगों ने देखा था कि LH जब सर्ज हुआ, यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा LH यहाँ पे सर्ज हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ। ओके, तो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Next question is corpus luteum secretes FSH, LH, progesterone or oxytocin. It secretes progesterone. We have studied here. तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों ही रिलीज करता है, बट हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में प्रोजेस्टेरॉन दिया हुआ था, तो विल डेफिनेटली टेक ऑन द प्रोजेस्टेरॉन। एंड देन वी अगेन हैव अ क्वेश्चन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ ह्यूमन फीमेल इज 28 days plus minus few days, but standard is 28 days. So if we are seeing the options 28 days, then we'll tick on that. The next question is the endometrium is the lining of ovary, uterus, fallopian tube or vagina. It is of course the lining of uterus. It is a very easy question. Okay, so I hope this topic was clear, and I hope I was able to explain the topic properly. Thank you so much.